तो क्या हो गया नीता रॉबिन्स? व्हाट हैव यू स्टडीड? So I finished the Excel sheet, but I need multiple revision. You have finished everything, na? Great. I'm proud of you. Yeah, I just went through. Yeah. In 2 days, you completed the entire Excel sheet. Great, applause. Great. No, but I don't remember much. I Great. need multiple revisions. You completed it, na? Great. Ansu, Unni, how much is you have done? Unni? I studied the 4 to 5 sheets, but I need to again study again. What you have not studied? I'm not studied the parts of CARO, audit report elements, fraud, and Indes. That is left. Why so much time is taken for completing such a small Excel sheet? What is the problem you're facing? The problem I am studying after 1-2 month. I am not in a that Caro schedule is nothing. Yes, I'm not that much flow that at the time when I am studying for CFNs, I am not in a flow to study so fastly. Within 2 days, I will be able to back to that track. Then only I can study with that kind of speed. That's the problem I am facing. I am not able to remember, so I am writing all the things annually, and I am learning. That's why I took time. I have discussed with Neeta when I have any doubts with regard to any points. He sorted out. कितना हो गया आपका? एक्सेल शीट हो गया? छोटा वाला दिया था ना आपको? छोटा करके दिया था, हो गया? मोटा मोटी तो शुरू हो गया। छोटा वाला दिया तो किया? आपको कौन सा कंपनी आया था एक बार के लिए याद करेंगे? कौन सा कंपनी आया था? मेरा पूछ रहा सर? हाँ बोलिए। वो EY GDS, PwC HDC और HDFC बैंक और वो ICIC। लेकिन सर HDFC बैंक में सर रिलेशनशिप मैनेजर का मैसेज आया, तो वो करना नहीं है सर। सब एक बार के लिए इंटरव्यू तो दीजिए पहले, क्यों ना इंटरव्यू देते रहिए। इंटरव्यू दीजिए भाई, कोई भी चीज लक्ष्मी तो मिल रहा है ना, छोड़ना नहीं है। लक्ष्मी तो मिल हाँ, कहीं भी कुछ HDFC बैंक अच्छा लक्ष्मी देता है कंपेयर टू अदर्स। 10.5 दे देता है ना, कोई भी चीज नहीं छोड़ने का। 12.5 हाँ, कितना दे रहा है? 12.5 लिखा हुआ था सर, 12.40। तो बढ़िया है। 12.5 तो मिलता ही नहीं जल्दी से। बिग फोर में असिस्टेंट मैनेजर को नहीं मिलता है 12.5। हाँ, इस बार थोड़ा बढ़ाया भी है, थोड़ा सा इसका पैकेज थोड़ा बढ़ाया भी है। सब चीज अच्छा है, समझे? ठीक है सर, हो जाएगा बस। आपको ये जो सीट भेजा है, ये सीट जो भेजा है इसको एकदम पूरा खत्म कर लीजिए। आप ऐसा समय आ गया समझ में नहीं आता है तो संभाल लीजिए शरीर में, बस। हाँ वो तो है। एक चीज सर, एक क्वेश्चन था मेरा। सर हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट में कहाँ प्रेजेंट करते हैं सर? तो कारो में आता ना। तो कारो में तो है सर कि कारो में कैश लॉस जो है वो कारो का जो न्यू क्लॉजेस है दैट हैव बीन एडेड व्हिच यू हैव टू रिपोर्ट द कैश लॉसेस ऑफ द करंट ईयर एंड द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर आल्सो। दैट इज द एडिशनल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स अंडर कारो 2020। Sir, I am also having one doubt. Can I ask? एक मिनट ना, वो जो कारो वाला है तो आपका CFS में जाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। यस सर, कैश फ्लो स्टेटमेंट में वो सर वो किस पार्ट में जाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट में, वही चीज। एक सेकंड रुकिएगा। So in CARO, it's consolidated financial statement. Like if there's any adverse or negative remark in the subsidiaries, then we report in the CARO. That's how I don't remember this because I haven't studied. This actually exists in the CARO reporting. Yeah, it's this is in the CARO reporting. 21st clause. 21st clause, last clause. Yeah. Okay. If there is any adverse remarks in the subsidiary or associate enterprise, then the same has to be reported by the
auditor of the consolidated financial statements in its CARO reporting of the holding company. Yeah. Okay, thank This you. is the recent Thank you. amendment in CARO. Sir, I am also having one doubt. Can I ask that? Sir, in debtors, accounting, auditing of debtors. In that, the last point number 5, under general, in case provision is made, then check whether ECL is done as per Ind AS 109. What do you mean by in ECL? Expected credit loss. Okay. Expected credit loss. Okay. ठीक है? Okay. वो ज्यादा नहीं पूछेगा आपको, ग्लोबल में नहीं पूछेगा, ECL इंडिया में पूछता है वो सब आपको। एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस ट्रेड रिसीवेबल में निकलता है वो आपका, ट्रेड रिसीवेबल में आपका एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस निकलता है। So new clauses that have been added in the CARO 2020, which if they will ask, we will quote the only names, or we have to do all the exercise. We have to detail in detail or in only पूरा समझाना only the पड़ेगा, names itself. पूरा समझाना पड़ेगा। जैसे सर वो एक पॉइंट था कि रिपोर्टिंग ऑन द अनरिकॉर्डेड इनकम, तो we have to summarize about the what is unreported, that मेरा जो the एक्सेल शीट income है which ना, हाँ जी, मेरा जो एक्सेल शीट है वो आपको अच्छे से करना है। हाँ जी सर, समझे? जो एक्सेल शीट है ना मेरा, वो अच्छे से करना है। वही देख रहा हूँ सर इसमें। वो एक्सेल शीट अच्छे से करना है, ठीक है? वो एक्सेल शीट में बढ़िया से समझना है चीजों को। जस्ट अ सेकंड ना, एक्सेल शीट में जो वर्ड है ना, इंटरनल ऑडिट CAGR, वो इम्पोर्टेंट है। इंटरनल ऑडिट CAGR, जस्ट अ सेकंड ना, एक मिनट रुकिएगा आप लोग। एक रिक्वेस्ट है, भोजन क्या बोलेगा आपको कि हम मेंबर है, उनको दे दीजिए सीट, हमसे ले लेगा वो लोग डायरेक्टली। समझे बात को? भोजन करता अरे हम भी मेंबर है, दे दीजिए, वो मेरे से मिस हो गया, हमको दे दीजिएगा ईमानदारी। बोलेगा सर दे देंगे आपको, ठीक है? भोजन नहीं करते, एक जन ऐसे कर रहा है अभी, ऐसे करके करते हैं कार्य में, ठीक है? दिल से कि आई एम आल्सो मेंबर, कुड यू प्लीज हेल्प मी, आई हैव द सीट। नहीं, वो चीज है, मेरे को कंफर्म करके करिएगा जो भी है, ठीक है? जब तक मेरे को कंफर्म नहीं किए, या उसको पता तो चल ही जाएगा, ग्रुप में एडेड है, ग्रुप में एडेड है, उसे पता चल जाएगा। ऐसे तो ऐड नहीं होने देंगे। समझ में आया ना? थोड़ा हेल्प हो जाएगा मेरा भी, ठीक है? कैसे करके भोजन अभी लास्ट मोमेंट ऐसे करके आते रहते हैं, ठीक है? वही चीज है सबसे बड़ा। ठीक, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग का कोई डाउट्स वगैरह नहीं है ना? मैं शुरू करता हूँ फिर, हाँ? ठीक है, और कोई डाउट है तो बोलिए, डाउट्स वाउट्स ले लेगा। कोई भी चीज को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो मैं सवाल पूछूंगा, इसलिए जो भी चीज आप लोग पढ़ने में नहीं समझ में आया, कोई भी चीज, कोई डाउट नहीं है ना? नो डाउट? नीता, एनी डाउट? सर ये जो एक्सेल सीट आप जो इधर रिसेंट जो भेजे थे सर, इंटरनल स्टैट ऑडिट, इंड एएस, फिर अमेंडमेंट, फिर फिनांस अकाउंट्स, ऐसा करके वर्कबुक बना हुआ, वही वाला अभी करना है ना सर? तुम्हारा जो कंपनी का देख लेना, तुम्हारा कंपनी का क्या है, GDS फीडीएस है, सब काम का है, और बैंक का है, सब काम का है, हाँ। कर लेना। दो चार एक्सटेंशन वैक्सेंशन अच्छा, तुम्हारा मतलब कंपनी काम का नहीं, छोड़ देना तुम, ठीक है? जो तुम्हारा कंपनी अभी काम तो का नहीं नहीं, छोड़ करेंगे, देना। फिर जब कैंपस ऑफ कैंपस में दिमाग लगाएंगे तब करेंगे, हाँ तब अगर कर नहीं हुआ इधर तो।
Sir, I सारा have का one है, more doubt. टाटा बिरला Sir, मानी जिसका भी है, सबका है, अदानी सबका है। sir, बोलिए, और कोई sir, डाउट? कुछ का है डाउट, बोलिए। gap यू मी। and uh, Ind AS, difference between US gap and Ind AS, and in which change in depreciation method. As per US gap, it is prospective effect. Am I right? Or as per ये और ये भी है एक्सेल शीट में, नहीं है? देखो, yeah. एक बता देना, इंडेक्स में लिफो नॉट अलाउड, वहां पर में लिफो Okay. अलाउड, हो गया। Okay. रेस्ट आई एम नॉट रिमेम्बरिंग। एक तो बोला ना। हाँ, तो एक भी नहीं बोलेगा, तुम एक बोल दिया बस, काम खत्म। ये है मेरे एक्सेल शीट में, हम देते हैं आप लोग को, ये नोट किया हमने। ये भी है, मेरे को याद आ रहा है, यूएस गैप है ना, सारा है। आप लोग का नहीं है, ये पूछता नहीं इसलिए हम नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए नहीं दिए, ज्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं देते हैं इसलिए। Change. पूछता ही नहीं, क्यों कराए बेकार में, समझे? ये भी है मेरे पास, करने का मन है तो ये भी है। फाइनल ना एक्सेल शीट आप शेयर कर दिएगा सर ग्रुप में, क्योंकि मेरे पास 3-4 एक्सेल लोग। ये जो है ना, लास्ट वाला जो दिया नहीं फाइनल है, ये क्रैश है, तो इतना तुमको आना चाहिए बस। जो लास्ट वाला है तो बस, यही अभी एक करना बार है तुम। इसको शेयर कर दिया ना सर एग्जाम। तुमको दे दिया अच्छा, तो भाई, वही है जो जो आपको लास्ट दिया, वो आपका फाइनल है बस। हम लोग छोटा करते जा रहे हैं चीज को, उसका नाम है सर समझे ना? स्टैट ऑडिट इंटरनल ऑडिट बिग फॉर ग्लोबल, वही नाम से जो है ना। हाँ, आपको जो दिया है अभी बस वो, बस उतना ही करना है अभी, समझे? बाकी इससे ज्यादा कुछ आ गया तो हमारा है। कमती देंगे तो याद रहेगा, सार ज्यादा देंगे तो कुछ भी याद नहीं करेंगे, उनको पता है। कमती देंगे तो ठीक है, एक दो क्वेश्चन नहीं भी बोलेंगे तो कहीं भी कर जाएगा, है ना? यहाँ पर में वो तो कुछ भी पूछ क्या लेगा, करेगा तो वही। उसको पूछना होगा तो कुछ भी पूछ लेगा वो, हाँ हाँ, है ना? तो जो 8 पेपर है सर, 8 पेपर में कितना क्या पूछ। हाँ, आपको 90% सही करना है, बाकी वो 10% बोलना आई एम नॉट एबल टू रिकॉल राइट नाउ, आई डेफिनेटली इंप्रूव माई नॉलेज आफ्टर दिस। क्योंकि हाँ भी ज्यादा दे देंगे ना, देखो अब लास्ट मोमेंट में है, अब सब कुछ ही दे देंगे भाई, तो फिर क्या होगा, सब कुछ पढ़ लेगा और क्या नहीं पढ़ेगा, कुछ इंपॉर्टेंट चीज छूट जाएगा, इसलिए हम कमती दे रहे हैं। मैं चाहूँ तो ये भी है मेरे पास, आप बोले ना यूएस गैप का, आप चाहे तो नोट कर लीजिए, हम देता नहीं है, टेंशन हो जाएगा, ये देखिए सब है हमारे पास, Okay. ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे तो, सब है। ज्यादा नहीं है, फिर आदमी कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए नहीं देते हैं। ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका, लेके सीने में लगा लीजिए इसको। Yes. अभी आंसर को याद रखना बहुत जरूरी है, इंटरव्यू का भूल जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है ना? तो सर फाइनल एग्जाम देते थे तब तब भी यही था सर कि अभी आंसर याद कर लो, एग्जाम के बाद भूल जाना, फिर हम्म एग्जाम के बाद फिर याद करना पड़ ही रहा था। हम्म। तो इस अभी टाइम भी पैसा वही फिर चाहिए आप ना। बोल रहे हैं कि फिर इंटरव्यू के बाद भूल जाना, फिर कहीं पता चला फिर याद करना है, पड़ा। जब नौकरी लग जाएगा फिर बॉस आपको याद दिला देगा, काम दे देके, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं, हाँ? नीता रॉबिन्स, बेसिक सवाल सबका पूछते रहेगा, हाँ? नीता रॉबिन्स, हाउ विल यू डू द ऑडिट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स? Okay, we do the audit of fixed assets in line with the assertions. That is valuation completeness, presentation, disclosure, existence, and rights and obligations. We do fiscal verification of fixed assets. Then we reconcile fixed asset register with fixed asset journal, ledger, financial statement. Then we'll check the depreciation calculation. We check whether whether a useful life depreciation is as per Schedule 2. Then we also do. Then we also check the invoices. We also check the title deeds or invoices of fixed assets to check whether the fixed assets belong to the entity. We check whether financial fixed assets are present in the financial statement as per Ind AS, as per respective Ind AS and Schedule 3. इस नंबर क्या होता है ना, Yeah. ठीक है? तो इस नंबर जो इंटरव्यूअर होगा वो वीडियो ऑफ रखेगा, तुमको ऑफ नहीं करना है, याद रखना, तुमको ऑफ नहीं करना है। Silent.
What I'm trying to say is that many times the interviewer will keep their video off, and you also keep the video off. No, you will keep the video on. Let him do whatever he's doing. Second thing, whenever you're starting, good morning, sir. You can ask. It's not necessary that he will ask you tell me something about yourself. Sometimes, Okay. not necessary. You will say good morning, sir. Thank you for giving opportunity. Then you will start. Okay. I did not start with tell me something about yourself, right? ये चीज आपको वहां पर में वो आपका देखना चाहता है आपका कितना है ये चीज आदमी भूल जाएगा the two things you need to keep in mind. Hey, you can start with any question. Sometimes they ask me to start with any question. You should always start with good evening, sir. Thank you for giving opportunity. Then you start with the answer. This is something which is very important. People in tension they सर अगर forget. मतलब गुड इवनिंग सर बोले और आंसर नहीं आ रहा तो क्या करेंगे सर? वो अलग चीज बोले है. गुड Good evening. इवनिंग, थैंक यू फॉर, Thank you for आंसर giving ही me नहीं this आता था तो opportunity. This is only good evening, sir. Actually, I don't know this answer. Good evening, sir. Actually, I am not तभी able नहीं to बोल recall रहे. this answer right now, but I will definitely improve my knowledge on it. वही बोलेगा, I am not able to recall this answer right. ठीक है? ठीक है. Next question, okay? How do you do ठीक है the सर. inventory verification? Anshul. Sir, we can conduct physical verification of inventory. Sir, I am audible. हाँ बोलो बोलो. Sir, we can conduct physical verification of inventory, and we can match the inventory register which are used in physical verification to the general ledger and balance sheet. And we also check whether inventory is valued as per India's two cost per NRE, whichever is lower. And we also check some supporting documents that inventory purchased in the name of company or not. वो तो इंग्लिश ठीक ही है भाई. इंग्लिश तो ठीक है तुम्हारा. प्रॉब्लम तो नहीं है. मेरे को नहीं लगा कोई प्रॉब्लम है. सर खाली एक ही प्रॉब्लम है तुम धीरे धीरे बोल रहे हैं. सर और इंग्लिश साहब सोच नहीं पा रहा हूँ सारे पॉइंट है वो ना. तो इंग्लिश ठीक है. तुम जब बोला ना इंग्लिश खराब है तुमको लगा अभी मन नहीं कर रहा है. 2 दिन आया अभी मजा नहीं आ रहा है. इंग्लिश ठीक है तुम्हारा. ठीक है. खाली तुम जब आंसर बोल रहे हैं ना तो तुम थोड़ा सा जोर से बोलो आंसर को. जैसे नीता रॉबिन बोली ना या तो खाना खा लो. तो जब भी आंसर बोलेगा अवार्ड में तो देखो बात 10 लाख रुपया हो रहा है. इट्स अबाउट मनी. जब मनी का बात आता है ना तो आदमी को जो चीज नहीं भी आता वो भी सीखना पड़ता है. भोजन को जीडी नहीं आता है तो वहां पर थोड़ी ना हाथ चूड़ी पहन के बैठ जाएगा. बोलेगा ना मुझे बात 20 लाख रुपए आईटीसी 20 लाख रुपए दे रहे हैं और जीडी करा रहे हैं. तुमको आए चाहे नहीं हो तुमको तो ये बात तो पता है कि तुमको स्टार्टिंग में बोलना है कुछ ना कुछ. स्टार्ट करना है 3 आदमी भी कुछ ना कुछ तो बोल के निकलना है. चाहे गलत हो या सही हो पर बोलना तो है ना एटलीस्ट. नहीं आता तो थोड़ी ना होता है. 20 लाख रुपए का बात है. तो बात जब पैसा का आता है तो जो चीज नहीं भी आता वो भी सीखना पड़ता है. इट्स अबाउट मनी दैट यू आर वर्किंग हार्ड नाउ. इंडियन आइडल कंपटीशन भी होता तो भी आप करते राइट. वही चीज है. तो आपको बोलना है और आप अच्छा ही बोल रहे हैं. बस आप थोड़ा जोर से बोलिए आंसर को. फिर से बोलिए ये वाला चीज को. हाउ विल यू डू और कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए जो भी चीज बोल रहे हैं. गलत भी आंसर बोले कॉन्फिडेंस के साथ बोलेगी बस. ठीक है. हाउ यू डू द गलत सब बोलेगे तो हम आपका सही कराएंगे ना. पर आप पहले कॉन्फिडेंस डाउन क्यों कर रहे हैं. है ना. हाउ विल यू डू द इन्वेंटरी वेरिफिकेशन. बोलिए. Sir, we will do inventory verification as per SA 501. जोर से जोर से. We इससे will जोड़ do नहीं होता. और we will do पैसा नहीं inventory. मिलेगा. पैसा नहीं मिलेगा आपको. फिर पैसा Okay, नहीं sir, मिलेगा. हम आपको बता रहे हैं. पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए. इतना मेहनत क्यों करे हैं पढ़ के. पैसा चाहिए तो जोर से बोलिए थोड़ा सा. मेरा आवाज आ रहा है ना ठीक से. जोर से बोलिए बोलिए. Sir, we will do physical verification as per SA 501. I am audible, sir. ठीक है ना. एयरफोन ले लीजिए. एयरफोन पहले नीता रॉबिन्स का भी प्रॉब्लम था अभी ठीक हो गया. यू टुक सम एयरफोन एनीथिंग बट यू टुक. No, sir. हाँ I didn't take anything. I just in settings I increased the input sound. सब अपना सेटिंग्स देख लो. ऑडियो का सेटिंग्स होता है. ऑडियो का म्यूट के बगल में होता है ऑडियो सेटिंग्स. वहां पर जाके स्पीकर को फुल करके रख लो.
ठीक है, ये चीज है, ठीक है, कोई बात नहीं है, बोलो। अभी टाइम नहीं भाई, बोलो आंसर तुम, बाद में करते हैं। Sir, we will we will conduct physical verification as per 501. We will, if physical verification is conducted other than balance 31st March, then we will apply rollback and roll forward. And we also conduct physical verification seat to floor and as per floor to seat. And if inventory is under the control of third party, then we will also conduct physical verification. If it is not feasible, then we will take representation from the third party, and we will apply other and alternate procedure. बोल रहा ठीक ही है, पर कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोल रहा है। ये आंसर को थोड़ा सा अच्छा से बोल देगा तो थोड़ा क्या बिगड़ जाएगा बताओ। बोला तो ठीक ही है तुम, वो थोड़ा स्टाइल के साथ बोल देगा तो क्या दिक्कत है, नहीं आता है भाई, पैसा मिलेगा। एक तो तुम जब बोल रहे हो तो तुम देखो कोड को तो नीचे करो, ऐसे करके थोड़ा दिखे, कपड़ा दिखे तुम्हारा, और नीचे करो उसको ऐसे करके, हमारा ऐसे करके, अच्छा लगेगा ऐसे करके बात करें, अच्छा नहीं लगेगा ना, तो नीचे करो उसको, नीचे करो, ठीक है, तुमको भी अच्छा लगेगा। ठीक है, थोड़ा नीचे आओ और थोड़ा सा हाथ हिलाओ, थोड़ा सा स्ट्रांग लो, थोड़ा जोर से बोलो, और थोड़ा पॉइंट एक, 1, नंबर 2, नंबर 3 ऐसे ऐसे करके बोलो। ठीक है, आंसर सही बोल रहा है, पर कॉन्फिडेंस लाओ कि तुम जो बोल रहा है सही है कि नहीं है। तुमको खुद को ही कॉन्फिडेंस है तो सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। समझ में आ रहा है ना बात को, भाई तुम सीए है, दिखाओ राइट, ऐसे ऐसे नहीं होता है। कॉन्फिडेंस लाओ एकदम, हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछता है तुमको, व्हाट यू विल डू इन द पेरोल चेकिंग। Then in payroll checking, first we will check component of we will check calculation of component with of payroll register, and we will check attendance register whether there is any ghost employee or exist or not. We will also check we will conduct test of details of newly joined employee by checking their offer letter and other documents. तुम सही बोल रहे हैं, खाली एक ही प्रॉब्लम तुम्हारे पास क्या है ना, तुम कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोल रहे हैं। तुम बोल रहे सही है, तुम पढ़ा भी है, प्रॉब्लम तुमको दो हो रहा है। एक तो तुम बार बार देखते जा रहा है, इधर देख रहा है, इधर देख रहा है, एक्सेल सीट खोल खोल के देख के बता रहा है, क्या पता चल रहा है? नहीं सर, वो थोड़ा देख देख के मत बोलो, डोंट नहीं सी सर, एंड से आंसर, ब्लैकलिस्ट कर देगा नहीं सीधे सर, ही आपको। सर देख नहीं रहा हूँ मैं, अभी बस ट्राई कर रहा हूँ, नोट पैड रखा ना तो मैं उस पर थोड़ा पेन चला रहा था, थोड़ा बहुत वो रहा ना बोलने में, नहीं नहीं, डर सा एकदम नहीं, लगने। सब हो जाएगा उसको, तुम चीटिंग कर रहा है। तुमको नहीं एकदम वो आई कांटेक्ट उसके बाद नहीं रखना है, पहले तो आई कांटेक्ट स्ट्रेट रखना है, और दूसरा चीज तुमको बोलना है फ्लो में, नंबर 1 विल चेक दिस, नंबर 2 विल चेक दिस, नंबर 3 विल चेक दिस, नंबर 4 विल चेक दिस। ठीक है, ठीक है सर। थोड़ा कॉन्फिडेंस लाओ ना भाई, पैसा का बात हो रहा है यहाँ पर, पैसा मिलेगा तुमको इंटरव्यू देके, ये नहीं कि हम लोग आपको टाइम पास के लिए करवा रहा है, इसका पैसा आने वाला है आपके पास, ऑफर लेटर। तो थोड़ा एनर्जी के साथ बोलो आंसर। एक और क्वेश्चन पूछता है तुमको, व्हाट इज डेफर्ड टैक्स एसेट, एग्जांपल। एग्जाम्पल हम्म, सर, ट्रांजैक्शन ऑफ 40 सेक्शन इन सेक्शन 43B ऑफ इनकम टैक्स एक्ट and unamortized preliminary expenses and unamortized depreciation great. and व्हाट इज डेफर्ड टैक्स एसेट। नॉलेज ठीक है भाई तुम्हारा, मेहनत की है, पता चल रहा है। व्हाट इज डेफर्ड टैक्स एसेट। deferred tax assets और इंग्लिश भी अच्छा है, खाली कॉन्फिडेंस का कमी है। इंग्लिश का प्रॉब्लम ही नहीं है तुम्हारा, तो बोला इंग्लिश का प्रॉब्लम है तो नहीं लगा इंग्लिश का प्रॉब्लम, प्रॉब्लम है कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोल रहे, बस वो वाला फीलिंग आया कॉन्फिडेंस के साथ, वो सीए वाला फीलिंग नहीं आ रहा है। बस कोट पहन लो थोड़ा हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, ठीक है, क्या बोला तुमने अभी, डेफर्ड टैक्स एसेट क्या होता है। sir when profit as per
Companies Act is less than Income Tax Act, then we will create deferred tax asset. क्या बोला, फिर से एक बार रिपीट करना बाबू. Sir, when profit as per Companies Act is less than profit as per Income Tax Act, then we will create deferred tax asset to fill the gap, match the gap. तुम कितना घंटा पढ़ के बोल के पढ़ा है, बोल के कितना घंटा पढ़ा है? सर बोल के तो पढ़ा था. मैंने क्या किया था ना, जैसे जूम लैपटॉप में चला लिया और दूसरा एक तरफ अपने फोन में चला लिया, तो इस तरीके से फोन में नहीं होता भाई ये सब चीज. लैपटॉप में बोल के पढ़ना पड़ेगा आपको, फोन में नहीं होगा. नहीं, लैपटॉप में जूम पे बैठे इस तरीके से बैठता था, और फोन में अलग. जो आप सर बोल रहे थे ना कि आवाज थोड़ी लो है, तो उस आवाज को ईयरफोन लगा के देख रहा था, आवाज कितने पिच पे आई जाएगी, तो वो बढ़ाने की कोशिश कर रहा था. तो मतलब थोड़ा वॉइस को अपना सही करो, तो वॉइस को सही करो, और दूसरा बोल के अच्छा से कॉन्फिडेंस के साथ बोलो जो भी चीज बोल रहा है. समझ रहे, तुम्हारा देख के लग रहा है तुम डर रहे हो. डरो मत ना भाई, डर गया तो गया. डरना ही तो नहीं है उधर में. तुमको अपना पूरा दिखाना है कि तुमको डर नहीं लग रहा है. ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हो. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारा. ठीक है, ओके. अमन कुमार, ठीक है. व्हाट आर द शेड्यूल 3 अमेंडमेंट्स? Schedule 3 amendments. We trading and the aging report. We will have to give the trading and trade receivables and trade payables aging report in the aging schedules. And the CWIP, the aging schedule is to be given, and the intangible under development, the aging schedule of which is to be given. The disclosures about the willful defaulters, the disclosures about the initiation of the prohibition of Benami Property Act, and the details about the and the disclosure about the investment in the cryptocurrencies, and deviations from the last year to the current year, different ratios like debt equity ratio, return on equity ratios, and many more ratios. If more than 25%, then we have to report under the Schedule 3 of the Companies Act 2013. Okay. There has been some 25% increase in some of the ratios. Okay, what are those ratios? Debt equity ratios, return on equity ratios, net profit ratios, return on investment ratios. Eleven ratios are there. Okay. Next, okay. What is India's 115 talks about the 5-step model? What is this? What is in it? India's 115 talks about the recognition of the revenue by the companies. The 5-step model of India's 115 are: first we have to identify the contracts. Then we have to identify the separate performance obligations, and then we have to allocate the performance obligations, separate performance obligations with the transaction prices, and we have to identify the transaction prices, and we will recognize the revenue as per the separate and by the transaction prices multiplied by the separate performance obligations. आपका अमन का देखिए वॉइस भी देख लिया ना आपने अंशुल. देखिए इनका वॉइस पूरा पक्का आ रहा है, पूरा समझ में आ रहा है. आपका वॉइस नहीं आ रहा है. वॉइस से कितना फर्क पड़ता है ना. आपका वॉइस नहीं आ रहा तो ऐसा लग रहा है भाई आपको कॉन्फिडेंस नहीं है. ये बोले पूरा कॉन्फिडेंस के साथ बोले. ऐसा नहीं कि इनका इंग्लिश आपका इंग्लिश में कोई फर्क है. आपका इंग्लिश भी ठीक है, पर आपका कॉन्फिडेंस का थोड़ा सा कमी है, तो आवाज में दम नहीं आ रहा है. समझ रहे ना. तो वो चीज आपको थोड़ा इंप्रूव करना है. आपका एक चीज, आप जैसे आप लोग को जो आप लोग रहोगे ना, तो हमेशा प्रोफेशनली अटायर में रहो. जितना आप लोग का ना प्रोफेशनल अटायर में बात करेगा ना, ये सब पहन के रखेंगे, आपको खुद को ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा. आई थिंक हर्षित भी ठीक था. हर्षित अपना चेक का शर्ट पहना, मैं भी तो चेक पहना हूं, पर हमेशा व्हाइट शर्ट पहना करो. चेक शर्ट नहीं चलता है कभी भी. ठीक है, तो चेक शर्ट नहीं चलता है, तो इसको व्हाइट शर्ट होता है ना, वो ज्यादा बेटर है. तो चेक शर्ट अच्छा नहीं लगता है, वो बोलेगा नहीं, पर आपको ज्यादा वो रहेगा. वो चीज है. और हमेशा देखना आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी अलग ही रहेगा. ओके, I'll ask a question to Unni. Okay, you have done internal audit, right? Unni? No, stat audit. You have done stat audit. Little bit internal audit you have done? Little bit you have done? Little bit in yesterday I read a little bit in internal audit, but I switched to stat audit because my interview is on statutory audit, I think. Okay, got it. Okay, so the question is, okay, how will you audit the trade payables? Trade payables, creditors.
Yes. Trade payables. Reconcile the creditor with reconcile the confirmation you used for reconcile the external confirmation with the ledger, creditors ledger, journal and trial balance and balance sheet, and then I will obtain external confirmation from creditors, and I with the help of pivot table I will rank top 10 creditors and related parties with related parties, and I try to reconcile and obtain the ask for the their ledger, and I will reconcile the same with my books. Then I prepare aging schedule, aging analysis, and if there is any creditor is not paid within the general industry practice, I will ask for the reason for not paying the same, and why the if the creditor is not paid for a long period, why the same has been recognized as revenue. I ask for the reason for the same. Okay. Come in the same meeting link, everybody. Okay, we'll have more questions with you all. Huh? Come in the same meeting link, everyone. Okay.